Hello friends, welcome to Quick Revision Point. My name is Raksha Srivastava. Friend, today we are discussing important question of English literature. It's very useful question for TGT, PGT, UGC, NET and other teaching exam. Okay, so let's start. First question: which is not the sonnet by John Milton? Okay, A है To the Nightingale, B है On His Deceased Wife, C है On the Late Rescue in Piedmont, and D है Surprised by Joy. Which is not the sonnet by Milton is Surprised by Joy. Right answer is D. Okay, sonnet by Milton is Surprised by Joy. Right answer is D. आगे देखते हैं फ्रेंड. In which play of William Shakespeare we find the line the first things we do let's kill and all the lawyers. तो A है King John, B है Henry VI part second, C है Henry IV part 2 and D है Edward II. In which play of William Shakespeare we find the line the first things we do let's kill and all the lawyers is Henry VI part second. Right answer is second. Next question: which is not associated with Chaucer? Okay, A है couplet, B है rhyme royal stanza, C है morning star of Renaissance and D है father of Indian English poetry. The which is not associated with Chaucer, तो फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री. ओके, राइट आंसर ही डी. आगे देखेंगे हेनरिक इब्सन अ नॉर्वेगियन प्ले राइट्स. हेनरिक इब्सन इज ए नॉर्वेगियन प्ले राइट्स पॉपुलाइज्ड. तो ए है रोमांटिक कॉमेडी, बी है ट्रेजेडी, सी है प्रॉब्लम प्ले एंड डी है कॉमेडी. तो हेनरिक इब्सन अ नॉर्वेगियन प्ले राइट्स पॉपुलाइज इट्स प्रॉब्लम प्ले. ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, प्रॉब्लम प्ले. आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी लाइन्स फ्रॉम. ए है पैराडाइज लॉस्ट, बी है पैराडाइज रिगेंड, सी है कॉमर्स एंड डी है सैमसन एगोनिस्ट. ओके, तो सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी ऑफ दी पैराडाइज लॉस्ट. ओके, बेस्ट सोसाइटी लाइन्स फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट. राइट आंसर इज फर्स्ट. आगे देखेंगे अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोएट्री हाउ मेनी स्टेज आर देयर इन द प्रोसेस ऑफ पोएट्री कंपोजिशन. ए है फर्स्ट स्टेज, बी है सेकंड स्टेज, सी है थर्ड स्टेज एंड डी है फोर्थ स्टेज. अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोएट्री हाउ मेनी स्टेज आर देयर इन द प्रोसेस ऑफ पोएट्री कंपोजिशन इज 4 स्टेज. राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन डियर गॉड द वेरी houses seem asleep is an example of. A है hyperbole, B है transferred epithet and C है simile and D है circumambulation. Okay, तो dear God the very houses seem asleep is an example of transferred epithet. Okay, right answer is B हो जाएगा. आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि विलियम कॉन्ग्रीव. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड विलियम कॉन्ग्रीव इज एसोसिएटेड विद. तो विलियम कॉन्ग्रीव इज एसोसिएटेड विद. ए है रोमांटिक कॉमेडी, बी है द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, सी है बी है इसमें प्रॉब्लम प्ले एंड सी है फ्रेंड द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर एंड डी है द कॉमेडी ऑफ मैनर. ओके, विलियम कॉन्ग्रीव इज एसोसिएटेड विद द कॉमेडी ऑफ मैनर. ओके, राइट आंसर इज डी. आगे देखेंगे हु सेज. ओके, हु सेज आई एम ऑल द डॉटर ऑफ माई फादर्स हाउस एंड ऑल द ब्रदर टू. तो ए है फ्रेंड ओलिविया एंड बी है डेमोना एंड सी है ओफेलिया एंड डी है फ्रेंड क्लियोपैट्रा. ओके, तो हु सेज आई एम, तो होगा फ्रेंड इसमें क्या है हु सेज. ओके, हु सेज आई एम ऑल द डॉटर ऑफ माई फादर्स हाउस एंड ऑल द ब्रदर टू इज Olivia. Right answer is A. Okay, next question, what does Milton request from God in terms of remembering the martyrs. Okay, तो A है to ignore their suffering and B है फ्रेंड इसमें to record. Okay, B क्या है to record their groans in his books and C है to send them to heaven immediately and D है to punish their killers directly. Okay, तो what does Milton request from God in terms of remembers. Okay, in terms of remembering the martyrs. Okay, to the martyrs is to record their groans in his book. Okay, to record their groans in his books. Right answer is B. Next question, which language is the word essay derived from. A है French, B है Italian, C है Greek and D है Dutch. Which language is the word essay derived from is Italian. Okay, right answer is B. और आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड फॉर वुमेन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर वुमेन आर एज रोजेज हुज फेयर फ्लावर. ओके,
whose fair flower being once displayed do the fall that very hour. Okay, so we where these lines appear: A, As You Like It; B है Twelfth Night; C, A Midsummer Night Dream; and D है Julius Caesar. तो for women are as roses whose fair flower being once displayed doth fall that very hour. Okay, where these lines appear is Twelfth Nights. Okay, right answer is B. आगे देखते हैं फ्रेंड. When was the play Justice? Okay, when was the play Justice published? When was the play Justice published? A है 1906, B है 1909, C है 1910 and D है 1913. When was the play Justice published is 1910. Okay, right answer is C. Next question. Respect to your great place and let the devil be sometime honored for his burning throne. Where is the duke? Where is the duke? This he should hear me speak lines from. तो A है ड्यूक वेंसिटियो एंड बी है फ्रेंड स्क्लेसस एंड सी है लूशियो एंड डी है एंग्लो. ओके, तो रिस्पेक्ट टू योर ग्रेट प्लेस एंड लेट्स द डेविल बी समटाइम्स हॉनर्ड फॉर हिज बर्निंग थ्रोन. वेयर इज द ड्यूक? दिस ही शुड हियर मी स्पीक लाइन्स फ्रॉम इज ड्यूक वेंसिटियो. ओके, ड्यूक वेंसिटियो. राइट आंसर इज ए. आगे देखेंगे फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु कॉल्ड द 18th century द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन? हु कॉल्ड द 18th century द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन? ए है जॉन ड्राइडेन, बी है जेफरी चौसर, सी अलेक्जेंडर पोप एंड डी है मैथ्यू अर्नल. तो हु कॉल्ड द 18th century द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन इन मैथ्यू अर्नल. राइट आंसर इज डी. ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि हु सेज विथ ट्रांसक्विल्स रेस्टोरेशन फीलिंग्स टू ऑफ द अनरिमेंबर्ड प्लेजर. ओके, टू अनरिमेंबर्ड प्लेजर. तो हु सेज विथ ट्रांसक्विल रेस्टोरेशन फीलिंग्स टू ऑफ अनरिमेंबर्ड प्लेजर. तो ए है जॉन ड्राइडेन, बी है जॉन मिल्टन, सी है विलियम वर्ड्सवर्थ एंड डी है जॉन मिल्टन. ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ. ओके, हु सेज विथ ट्रांसक्विल्स रेस्टोरेशन फीलिंग टू ऑफ अनरिमेंबर्ड प्लेजर इज विलियम वर्ड्सवर्थ. राइट आंसर इज सी. आगे देखेंगे व्हाट इज द पर्पज ऑफ ओड इन लिटरेचर? व्हाट इज द पर्पज ऑफ ओड इन लिटरेचर? ए है टू सेलिब्रेट, बी है ग्लोरीफाई अ पर्सन, सी है एप्रिसिएट एन इवेंट और पर्सन एंड डी है ऑल ऑफ द एबव. तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ ओड इन द लिटरेचर इज ऑल ऑफ द एबव. राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. डियर गॉड द वेरी हॉर्सेस सीम asleep where the lines is from. Okay, dear God the very houses seem asleep where the line is from. तो ए है फ्रेंड इसमें टिंटन एबे. ओके, बी है इसमें इट इज़ ब्यूटिशियस इवनिंग क्लाम एंड बी है इसमें इट इज़ ब्यूटिशियस इवनिंग क्लाम एंड फ्री ब्रिज. सी है फ्रेंड इसमें कंपोज अपॉन वेस्टमिनिस्टर एंड डी है टू मिल्टन. ओके, तो Dear God, the very houses seem asleep where the line is from is composed upon Westminster. Right answer is C. आगे देखते हैं फ्रेंड. Who wrote the work Hamlet and his problems? Who wrote the work Hamlet and his problems? A है विलियम शेक्सपियर, B है विलियम फॉल्कनर, C है T.S. Eliot and D है none of the above. Who wrote the work Hamlet and his problem is Thomas Easton Eliot. Right answer is C. Okay, आगे देखते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फॉर विच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रांसिस जेफरी कमेंट दिस विल नेवर डू. ओके, ए है द प्रील्यूड, बी है दी एक्सक्यूशन एंड सी है फ्रेंड इसमें पोएम्स इन 2 volume एंड डी है पेटर बेल्स. ओके, तो फॉर विच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रांसिस जेफरी कमेंट्स दिस विल नेवर डू, तो इज पेटर बेल्स. ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा, पेटर बेल. ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लिटिल मैन बाई जॉन गॉल्सवर्दी इज इन. द लिटिल मैन बाई जॉन गॉल्सवर्दी इज इन. ए है 3 एक्ट, बी है 3 और बी है फ्रेंड इसमें 3 सीन एंड सी है 2 acts and D है 2 scenes. Okay, Little Man by John Galsworthy is in 3 scenes. Okay, right answer is B. Next question. In which play of John Galsworthy does the character Hillcrist appear?
ए है स्ट्राइफ, बी है लॉयल्टीज, सी है दी स्किन गेम एंड डी है दी मैन ऑफ प्रॉपर्टी. ओके, तो इन विच प्ले ऑफ जॉन गाल्सवर्दी डज द करेक्टर हिल क्राइस्ट अपीयर इन द स्किन गेम. ओके, राइट आंसर इज सी. आगे देखेंगे इन विच सेंचुरी डिड द नॉवेल फ्लोरिसेस. तो ए है 16th सेंचुरी. ओके, ए है 16th सेंचुरी, बी है 17th सेंचुरी, सी है 18th सेंचुरी एंड डी है नन ऑफ द एबव. तो इन विच सेंचुरी डिड द नॉवेल फ्लोरिसेस इज 18th सेंचुरी. ओके, राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु सेज विथ ट्रांसक्विल रेस्टोरेशन फीलिंग टू ऑफ अनरिमेंबर्ड प्लेजर. ए है जॉन ड्राइडेन, बी है जॉन मिल्टन, सी है विलियम वर्ड्सवर्थ एंड डी है जॉन मिल्टन. ओके, तो हु सेज विथ ट्रांसक्विल रेस्टोरेशन फीलिंग टू ऑफ अनरिमेंबर्ड प्लेजर इज विलियम वर्ड्सवर्थ. ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सी हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ. ओके, आगे देखते हैं इंग्लिश. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, पेडागोजी के क्वेश्चन है कि व्हाट डज मल्टीलिंगुअलिज्म इन स्कूल एजुकेशन मीन. ओके, तो व्हाट डज मल्टीलिंगुअलिज्म इन स्कूल एजुकेशन मीन. तो ए है फ्रेंड लर्निंग ऑफ मेनी लैंग्वेज, बी है इसमें यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर इन टीचिंग लर्निंग, सी है लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी एंड डी है टीचिंग ऑल लैंग्वेज ऑफ लर्नर इन स्कूल. ओके, व्हाट डज मल्टीलिंगुअलिज्म इन स्कूल एजुकेशन मीन, यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर इन टीचिंग लर्निंग. राइट आंसर इज बी. आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग द स्टेज इन्वॉल्व द प्रोसेस इन द प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग. तो फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग द स्टेज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अप्रोच टू राइटिंग. तो ए फर्स्ट है फ्रेंड इसमें आउटलाइनिंग, सेकंड है राइटिंग फर्स्ट ड्राफ्ट, थर्ड है राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट एंड ओके, तो इसमें जो होगा फ्रेंड उसमें होगा सी. फर्स्ट होगा सी आउटलाइनिंग, फर्स्ट पहले होगा सी आउटलाइनिंग, फिर होगा ड्राफ्टिंग, फिर होगा एडिटिंग, फिर होगा रीड्राफ्टिंग, फिर होगा फाइनल राइटअप. ओके, तो राइट आंसर इज सी. आगे देखते हैं फ्रेंड, कंप्रीहेंशन इनपुट रेफर्स टू. तो कंप्रीहेंशन इनपुट रेफर टू ए एक्सप्लोर ऑफ मीनिंगफुल ओरल एंड राइटिंग रिटन लैंग्वेज स्लाइटली एबव द लर्नर करेंट लेवल ऑफ मास्टरी. बी है explore of oral and writing language to the comprehensible levels of learner and C है explore of spoken and written language to level below the learner comprehension and D है explore of language to the cognitive level of learner. Okay, तो comprehensive input refer to explore of meaningful oral and written language slightly above the learner current level of mastery. Okay, right answer जो होगा वो A हो जाएगा. आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. अ टीचर ऑफ क्लास 6 brings lots of object of material to teach vocabulary and generate discussion for a speaking activity. What are these material in language teaching known as? तो A है toys, B है teaching object, C है learning tools and D है realia. ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, realia. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पेक्टिव vocabulary includes. तो A है words that we recognize when we hear or read themselves. ओके, एंड B है फ्रेंड इसमें कि वर्ड्स दैट वी यूज व्हेन वी स्पीक और राइट देम. सी है वर्ड्स ऑफ विच वी नो द मीनिंग बिफोर वी रीड अ टेक्स्ट एंड डी है वर्ड्स विच आर एम्बिगियस. ओके, तो इसमें जो राइट होगा फ्रेंड वो होगा कि रिस्पेक्टिव वोकैबुलरी इंक्लूड इज वर्ड्स दैट वी रिकॉग्नाइज व्हेन वी हियर और रीड देमसेल्फ. ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा. आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. अ लर्नर इन द सिटी ऑफ श्रीनगर. ओके, अ लर्नर इज इन द सिटी ऑफ श्रीनगर ऑप्ट्स मलयालम एज हर थर्ड लैंग्वेज एंड इज एबल टू स्पीक एंड रीड इट्स विद इन अ ईयर थ्रू हर क्लासरूम एक्सप्लोर एंड इंस्ट्रक्शन. व्हाट इज दिस नोन एज? ए है लैंग्वेज लर्निंग, बी है लैंग्वेज एक्विजिशन, सी है लैंग्वेज एडिशन एंड डी है सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म. Okay, a learner in the city of Srinagar opts Malayalam as her third language and is able to speak and read it within a year through
through her classroom, explore and instruction. What is this known as is language learning? Okay, right answer is A. आगे देखते हैं फ्रेंड्स. Learner undergo the various stage of writing. Learners undergo the various stage of writing. What is this approach to writing known as? A है product approach, B है process approach, C है paragraph dictations and D है personal writing. So learner undergo the various stages of writing. What is this approach to writing known as the process approach? Right answer is B. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि मेजर एम ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ पोइट्री. मेजर एम्स ऑफ टीचिंग लर्निंग पोइट्री इज. तो ए है इंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन, बी है लर्निंग द एक्ट ऑफ लर्निंग द आर्ट ऑफ राइटिंग पोइट्री, सी है लैंग्वेज लर्निंग एंड डी है लर्निंग वोकैबुलरी एंड ग्रामर. ओके, तो मेजर एम ऑफ टीचिंग लर्निंग पोइट्री इज, मेजर एम ऑफ टीचिंग लर्निंग पोइट्री इज, तो वो हो जाएगा फ्रेंड इंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन. ओके, इंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन. राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा. आगे देखते हैं. And an authentic text is. An authentic text is A है a text narrative written by textbook author, B है an original of the text from context, C है a completely modified and contrived text from the original writing, and D है a story and pictures drawn by learners as part of their assignment. तो an authentic text is तो an original of the text from context. Right answer is B. Okay, आगे देखते हैं फ्रेंड. बेसिस इंटरपर्सनल communication skills. Basis interpersonal communicative skills refers to A है language needed for conveying abstract ideas. Okay, B है language needed for communication by young learner, C है language needed for here and now communication, and D है communicative language teaching. तो बेसिस इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स रेफर्स टू इज लैंग्वेज नीडेड फॉर हियर एंड नाउ कम्युनिकेशन. राइट आंसर इज सी. आगे देखेंगे लैंग्वेज असेसमेंट. ओके, लैंग्वेज असेसमेंट इज ओरिएंटेड टू, लैंग्वेज असेसमेंट इज ओरिएंटेड टू. ए है मेजर द अचीवमेंट ऑफ लर्नर, बी है फाइंड द प्लेस ऑफ द लर्नर्स इन देयर क्लास, सी है मेजर देयर ओवरऑल और समेटिव अचीवमेंट, डी है मेजर द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लर्नर. राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा. मेजर दी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लर्नर. राइट आंसर ई डी. आगे देखते हैं. वाइल रीडिंग अ टेक्स्ट अ लर्नर गेट सम प्रमोट दैट सपोर्ट्स द मीनिंग मेकिंग प्रोसेस. व्हाट इज दिस नोन एज? ए है स्कीमिंग, बी है स्कैनिंग, सी है सिमेंटिक यूसेज एंड डी है फॉर्मुलेटिव यूसेज. तो राइट आंसर इज सी, सिमेंटिक यूसेज. ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ लैंग्वेज टीचर along with her social science collegians gives an assignment on culture diversity of India. Learners are to consult social science books and other books and documents relating to history, geography and culture and politics to write a report and develop a poster on the theme. What would this process of language learning called? तो A है language in social science, B है social science assignment, C है language across the curriculum and D है language writing development. Okay, तो a language teacher along with her social science collegians gives an assignment on culture diversity of India. Learners are to consult social science books and other books and document relating to history, geography, okay, geography, cultures and politics to write a report and develop a poster on the theme. What would this process of language learning called? Is language across the curriculum. Right answer is C. Okay, आगे देखते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A learner is able to read a text with limited understanding. C is able to read the text very well and do the comprehension task with the support of her elder brother. This practice of learning teaching. तो A है coaching, B है tutoring, C है scaffolding and D input hypothesis. Okay, a learner is able to read a text with limited understanding. C is able to read the text very well and do this comprehension task with the support of her elder brother. Support मतलब scaffolding supported of her elder brother. This practice of learning teaching is scaffolding. It means support होता है इसका मतलब. ओके, राइट आंसर इज सी. आगे देखते हैं. कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ लर्निंग थ्योरी बिलीव्स दैट. ओके, कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ लर्निंग थ्योरी बिलीव्स दैट. तो ए है फ्रेंड चिल्ड्रेंस लर्न न्यू नॉलेज थ्रू क्लासरूम टीचिंग, बी है लैंग्वेज इज लर्न थ्रू स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस, सी है ऑल लर्नर्स लर्न इन द सेम मैनर एंड डी है चिल्ड्रेंस लर्न बाय कनेक्टिंग विद देयर प्रीवियस नॉलेज. ओके,
तो कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ लर्निंग थ्योरी बिलीव्स दैट इज चिल्ड्रंस लर्न बाई कनेक्टिंग विथ देयर प्रीवियस नॉलेज। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।